communication and global awareness. From breaking news to breaking dance moves, from cartoons to cricket, television is more than just entertainment. It's a window to world, a source of knowledge and a means to connect people across the globe. टेलीविजन से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, लेकिन अगर हम सोच समझ कर ना देखें तो यह हमें गुमराह भी कर सकता है। इसीलिए समझदारी से देखना ही बुद्धिमानी है। Very well said, Anaya. So on this note, let's start our assembly with the prayers to seek the Almighty's grace, blessings and wisdom. Of class second is going to represent the news of the day. Top news headlines are: Rare albino keel bat snake found in Assam. Center asks states to make proper use of zoos. Dangerous sand waste to get new life as eco breaks. Navy to commission Mahe on November 24. Thank you everyone. Have a nice day. Now let's refresh our minds with the thought of the day, which will surely inspire us about the use of television. So, I, Simon of class 2nd, is going to represent the thought of the day. The thought of the day is: television can teach, inform and inspire, but only if we use it wisely. I repeat, television can teach, inform and inspire, but only if we use it wisely. Thank you. Have a nice day. That was indeed a wonderful thought, reminding us to use media positively. Now, let's welcome Hinaya with her with आज का सुविचार। नमस्कार, मेरा नाम हिनाया है। मैं कक्षा दूसरी से की छात्रा हूँ। आज का सुविचार है: टेलीविजन केवल मनोरंजन का साधन नहीं, यह ज्ञान, सूचना और दुनिया को जोड़ने का माध्यम है। इसका सही उपयोग हमें जागरूक और एकजुट बना सकता है। मैं फिर से दोहराती हूँ, टेलीविजन केवल मनोरंजन का साधन नहीं, यह ज्ञान, सूचना और दुनिया को जोड़ने का माध्यम है। इसका सही उपयोग हमें जागरूक और एकजुट बना सकता है। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। आशा करती हूँ सभी इस पर अमल करेंगे। काइंडली अपलोड फॉर हिनाया।
टेलीविजन ज्ञान का सागर है, बस सही दिशा में तैरना आना चाहिए। टीवी वही दिखाता है जो हम देखना चाहते हैं। टीवी मनोरंजन का साधन है, इसीलिए समझदारी से चुने। Yes, Sanaya, you said it correct. Now to learn some more fun facts about the importance of this day, let's Pooja to deliver a speech on World Television. Hey everyone, I Sanvi of class 2nd is going to speak few lines on World Television Day. World Television Day is celebrated every year on 21st November. It is a day to remember the importance of television in our lives. The day was started by United Nations in 1996. Television is the symbol of communication. The world's first electronic television was invented in 1927. It reminds us how TV help us learn two new things. Thank you. Have a nice day. Wonderful. Thank you, Sanuja, for that informative and amazing speech. Television has been a part of every home, bringing joy, laughter and stories that stay with us. Now for English poem. Everyone, my name is Prisha. I study in 2nd C. Today I am going to recite a poem on television. I love watching television. It's a lovely entertainment. Lots of art and music. But I wonder why. Some people think it is bad, but I think it is fabulous. Help a mind to cure and be pure. I love watching television. It always captures my attention. Thank you everyone. Have a nice day. Wow, what an amazing poem by Prisha. Thank you for this. Dear friends, clapping should not stop. Now, students will come on stage with her Hindi poem. नमस्कार, मेरा नाम जियांशी। आज मैं आप सभी के सामने हिंदी कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। कविता का नाम है टीवी। टीवी का भी अपना ही एक मजा है। एक दिन टीवी से क्या दूर रह गए, मानो मिल गई सजा है। ये टीवी वाले भी गजब ढाते, एक तो सभ्यता का पाठ पढ़ाते, तो दूसरी तरफ सास बहू को खुद ही लड़वा देते। टीवी पर चढ़ाए आधुनिकता का रंग, नामुमकिन है टीवी देखना परिवार के संग। सबके अपने अपने हैं व्यूज, तो कोई देखता कार्यक्रम तो कोई देखता न्यूज। आजकल की फिल्मों के कारण तो भूसा है, गाना जबरदस्ती में ठूसा गया है। खैर, खाली समय कैसे बिताए दोस्तों, टीवी पर फिल्म देखना तो हमारी मजबूरी है। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। वाह जानशी, बहुत ही सुंदर कविता प्रस्तुत की। I hope everyone enjoyed it. As today we have gathered here to celebrate something that has been a part of every home, every living room and every family moment. Hence, to showcase the journey and influence of television, our talented students have prepared a skit for you all. This performance will take you through the evolution of television as today's smart screens era. So sit back, relax and enjoy as we present television, the window to the world. स्मार्ट टीवी। गट्टू चिंकी हमेशा ही टेक्नोलॉजी के मामले में अवेयर रहते हैं। उन्हें डिजिटल दुनिया में रहना जरूर पसंद है और दोनों हमेशा ही फ्यूचर में किस तरह की इनोवेशन आएगी इस बारे में बात करते रहते हैं। संडे के दिन गट्टू और चिंकी यूं ही हॉल में सोफे पर बैठे बातें कर रहे थे। चिंकी, तुम्हें पता है जापान के एक साइंटिस्ट ने कहा है आने वाले सालों में कार रास्ते पर नहीं बल्कि हवा में उड़ेंगे और हर किसी के पास उड़ने वाली कार होगी। वाह, कितना मजा आएगा ना। इंडिया में भी उड़ने वाली कार आ जाएगी, स्मार्ट इंडिया हो जाएगा। मैंने ये भी सुना है कि हमें होमवर्क के लिए नोटबुक या बुक्स कैरी करने की जरूरत नहीं होगी। हम मोबाइल या लैपटॉप पर ही होमवर्क करके दे सकते हैं। अगर ऐसा है गट्टू, तो मैं ऑटोमेटिक होमवर्क इनोवेशन का वेट कर रही हूँ। मैं तो उड़ने वाली गाड़ी या ऑटोमेटिक होमवर्क इनोवेशन से ज्यादा पापा ने ऑर्डर किए स्मार्ट टीवी के लिए ज्यादा एक्साइटेड हूँ। पापा ने ऑर्डर तो दिया है लेकिन टीवी अब तक नहीं आया है। गट्टू मम्मी को आवाज देते हुए चिल्लाकर पूछा, मम्मी मम्मी, अब तक टीवी क्यों नहीं आया? पापा भी घर पर नहीं है, वरना ऑनलाइन चेक कर लेते। हाँ मम्मी, मुझे जल्द से जल्द अपना स्मार्ट टीवी देखना है। कितना बड़ा होगा ना? अरे हाँ बच्चों, थोड़ा सब्र रखो। पापा का अभी फोन आया था कि टीवी जल्दी ही डिलीवर हो जाएगा। हमारा स्मार्ट टीवी आ रहा है। बड़े स्क्रीन पर कार्टून देखने में कितना मजा आएगा।
स्मार्ट टीवी के लिए बच्चे बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं और जल्द ही गट्टू और चिंकी का इंतजार खत्म हुआ और बड़ा सा बॉक्स उनके घर पर डिलीवर हुआ। पापा भी घर पहुंचे। बच्चे टीवी आते ही शोर मचाने लगे। अरे अरे बच्चों, रुको रुको, स्मार्ट टीवी है, सेटिंग करने में थोड़ा वक्त लगेगा। पापा ने सर्विसमैन के साथ स्मार्ट टीवी की सेटिंग कर सब कुछ अरेंज करवा दिया। जैसे ही स्मार्ट टीवी का सेटअप हो गया वैसे ही गट्टू और चिंकी अपना फेवरेट कार्टून बड़े स्क्रीन पर देखने लगे। क्लियरिटी कितनी अच्छी है ना। थैंक यू सो मच पापा स्मार्ट टीवी के लिए। अब हम भी स्मार्ट हो गए। गट्टू चिंकी, तुम कार्टून देखो, तब तक मैं स्मार्ट टीवी का मैनुअल पढ़ता हूँ और बाकी फीचर समझने की कोशिश करता हूँ। गट्टू और चिंकी कार्टून देखने में गुम हो गए। गट्टू और चिंकी की नजर टीवी से हटी नहीं रही थी। इसके बाद गट्टू और चिंकी का फेवरेट कार्टून शो चलने लगा। एक शो खत्म हुआ और गट्टू ने चैनल बदलकर दूसरा शो लगाया, जिसमें फिर एक बार गट्टू और चिंकी गुम हो गए। नए टीवी के आने से बच्चे तो टीवी से जैसे चिपक ही गए थे। उनकी नजर टीवी से हटी नहीं रही थी। गट्टू चिंकी, इधर आओ, दूध पी लो जल्दी। जब से टीवी आया तब से टीवी ही देख रहे हो। आज दूध नहीं पीना मम्मी, प्लीज कार्टून देखने दीजिए ना। मम्मी नई स्क्रीन पर कार्टून देखने में बहुत मजा आ रहा है। गट्टू चिंकी, बहुत हो गया, इधर आ जाओ। इतनी देर टीवी देखना अच्छी बात नहीं और स्मार्ट टीवी हमारे ही घर पर रहने वाला है। तुम अभी दूध पी के बाहर जाओ, बाहर जाकर थोड़ा खेलो, फिर बाद में होमवर्क पूरा करो, ठीक है? गट्टू और चिंकी ने मम्मी की बात मानी, टीवी का स्विच ऑफ किया और मम्मी ने दोनों को दूध का ग्लास थमाया और गट्टू चिंकी खेलने के लिए सोसाइटी कंपाउंड में चले गए। सोसाइटी के सभी बच्चे कंपाउंड में खेल रहे थे। बंटी, हरी, भूषण, सुनो, हमारे घर पर स्मार्ट टीवी आया है और वाकई नाम की तरह टीवी भी स्मार्ट है। अरे वाह, मैंने तो स्मार्ट टीवी के बारे में सिर्फ सुना ही था। मैं भी देखने तुम्हारे घर आऊंगा। हाँ, तुम सभी आना। बहुत बड़ा स्क्रीन है और कार्टून तो बहुत अच्छा दिखता है टीवी पर। बहुत मजा आएगा, हमने देखा है। बंटी, सिर्फ कार्टून ही नहीं, उसमें वाईफाई भी कनेक्ट किया जा सकता है और कई सारे अलग अलग फीचर्स भी है। पापा ने बताया कि हम उस पर कंप्यूटर की तरह काम भी कर सकते हैं। हाँ, स्मार्ट टीवी में वो सब कुछ किया जा सकता है जैसे हम मोबाइल में या किसी लैपटॉप में करते हैं। हाँ पापा, मैनुअल पढ़ रहे हैं और भी बहुत सारी चीजें स्मार्ट टीवी में। धीरे धीरे सब कुछ सीख जाएंगे। तुम्हें पता है, टीवी से मोबाइल भी आसानी से कनेक्ट हो जाता है और अब हमें छोटे स्क्रीन पर देखने की जरूरत नहीं है। मैंने स्मार्ट टीवी के बारे में सुना है कि टच स्क्रीन भी होता है। घर पर जाते ही सिस्टम चेक करूंगा और टच स्क्रीन का ऑप्शन एक्टिव करूंगा। काफी देर तक स्मार्ट टीवी के फीचर्स के बारे में दोस्तों के साथ बातें करने के बाद गट्टू और चिंकी अपने सभी दोस्तों के साथ स्मार्ट टीवी पर कार्टून देखने के लिए घर वापस लौटे। सभी लोग कुर्सी पर और सोफा पर एडजस्ट होकर बैठ गए। सभी लोगों को बड़े स्क्रीन पर कार्टून देखने में एक्साइटमेंट है। चिंकी ने टीवी चालू किया। बंटी, गट्टू, भूषण स्मार्ट टीवी के और भी फीचर्स को समझने की कोशिश कर रहे थे और अलग अलग चैनल पर मनपसंद कार्टून शो देख रहे थे। तभी पापा लौटे और मम्मी भी बच्चों की एक्साइटमेंट को देखकर हैरान रह गई। मम्मी ने पापा से कहा, गट्टू और चिंकी के साथ साथ बाकी सभी बच्चे भी बहुत ज्यादा खुश हो गए हैं स्मार्ट टीवी के आने से। हाँ सही कहा, खुशी दिख रही है, लेकिन थोड़ा बच्चों को समझाना पड़ेगा कि स्मार्ट टीवी का स्मार्टली यूज कैसे किया जाए। पापा बच्चों की ओर बढ़े। बच्चों, स्मार्ट टीवी तुम्हें स्मार्ट बनाने के लिए है, तो केवल कार्टून ही मत देखो। तुम स्मार्ट टीवी पर अपना नॉलेज बढ़ाकर खुद को स्मार्ट भी कर सकते हो। इसलिए केवल कार्टून देखकर स्मार्ट टीवी को एंजॉय करने से ज्यादा तुम्हें नई चीजें सीखकर खुद का नॉलेज बढ़ाना चाहिए। अरे तभी तो तुम बनोगे स्मार्ट स्टूडेंट, वो भी स्मार्ट टीवी के साथ। पापा सही कह रहे हैं बच्चों, स्मार्टफोन से शुरुआत हुई है तो अब स्मार्ट टीवी के साथ और भी ज्यादा नॉलेज बढ़ना ही चाहिए। क्यों? स्मार्ट टीवी स्मार्ट सभी। That was a wonderful performance. Kindly give Grandma a huge round of applause. This shows how television has changed our lives. Indeed, from family gatherings around one screen to streaming shows on our phones, television has come a long way. Stay tuned because just like television, the show must go on. Please put your hands together for the dance performance.
TV. You have learned about it. Okay. But how to use smart TV smartly? That is the message that has been given by that skit. है ना? We should not watch only cartoon on the TV. Right? It was great assembly and a great message that was given by this assembly. Give them a huge round of applause for the class second C and for the teacher for putting such a great efforts for them. It was too good.